बच्चों, ये तुम्हारी रिविजन क्लास and class of writing. First, I am going to teach about your poem once again. I record this poem. Then we have to see the class of writing. First, हम है सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं. What is the meaning? Already I told in your previous class. I hope you to understand the poem meanings. Again, I tell you, we are the sun, moon and star, and we are the little children. जैसे नन्हे नन्हे बचपन है, लेकिन हम नन्हे बचपन ही एक विशाल पर्वत बन जाते हैं. We are the little piece of soil, लेकिन हम नन्हे बचपन ही, but we are the though we are the piece of soil and we will become a huge mountain. हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली. Though we are the world of children, a strange world, but we are not everyone. हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली वाली. We are the idol of Surat temple and our face look like a nail, that means innocent. यहाँ ना कोई बेरंग का, सबके सब हम एक रंग है. There is no different of the colors and the same, all the colors are same. पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाएं एक संग है. East, west, north, south, all the direction are equal. पृथ्वी माँ के रात दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे. We are the pride of our motherland and we are the sun, moon and star. एक डराती ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम. On the lap of our motherland we will grow. एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है. One is our sky roof and same air, same breath. धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है. Our body covered with sun, moonlight. हम हैं ये विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे. We are the world of star and we are the sun, moon and star. इस कवि का आकर कौन है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी. Let's we come to start our class of writing. Students, first take your class work and write some meanings from your poem. The first poem, Sabdan. This is Hindi to English meaning. The first one, सूरज. बच्चों, तुम तुम्हारे नोट पर कैसे लिखे तो रेखा की नोट है या ब्रॉड लाइन नोट, उसके नीचे तुम्हारा हाथ रखकर उसके नीचे इस तरह लिखो. सूरज रहा द सन. Again I tell you, children, please write in the class for Suraja. Suraj, the meaning of this word, the sun. The second one, Chand. Chand का the moon. चा के ऊपर एक चंद्रा बिंदु लगाओ. चांद, the meaning of this word, the moon. Third one, Rajtan. Ra, ja, ka, na. Rajtan. Rajtan means the piece of soil. रचकन का अर्थ क्या है? The piece of soil. Fourth one, तन. तन का body. ता ना तन body. Fifth one, पर्वत. पर्वत का अर्थ है mountain.
ear. Take one. Pavan. Pavan का and. Ninth one. Suraj. Suraj का face. The last one. Sun. Sun का company. Children, again I tell you one by one. You write in the class work. So, the first Roman is Sardar. पहले तुम्हारे नोट में इस कविता का नाम लिखो और उसके बाद उनका हेडिंग लिखो सरदार. सूरज, सूरज, the sun. चांद, चांद, the moon. राजा का नाम, रजकन, the piece of soil. तना, तन, body. पर्वत, पर्वत, mountain. विशाल, विशाल, huge. पृथ्वी, पृथ्वी, earth. पवन, पवन, air. सूरज, सूरज, face. sun, company. The second Roman is answer the following questions. सारे बच्चों उसके बदले तुम हिंदी में लिखो. प्रश्नोत्तर. तुमको हिंदी मीनिंग चाहिए तो ये भी लिखो. इंग्लिश मीनिंग. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नन्हे, नन्हे का अर्थ लिटिल. नन्हे बालक इसके नन्हे बालक इसके समान है. समान का अर्थ इक्वल. I tell this question meaning in Hindi now. First you listen here. नन्हे बालक किसके समान है? For which the little children are equal. इसमें एक ही क्वेश्चन बन गया. इसके बदले तुम क्या लिखे तो नन्हे बालक किसके समान है? रजकन के समान है. रजकन के समान है. Children, this is very simple question like the 1 mark or 2 mark. See that नन्हे बालक किसके समान है. इसमें क्वेश्चन शब्द क्या है? किसके. किसके के बदले तो क्या लिखे तो रजकन के. नन्हे बालक किसके समान है. नन्हे बालक इसके के बदले तुम क्या लिखे? रजकन. रजकन के समान है. I think this is very simple question. The second one. नन्हे बालक किसके दुलारे हैं?
Again I read the question. नन्हे बालक किसके दुलारे हैं? For which the little children are proud. नन्हे बालक यहाँ भी इसके के बदले एक ही शब्द है, पृथ्वी माँ के। पृथ्वी का अर्थ क्या है? यह पृथ्वी माँ के दुलारे हैं। अच्छा बच्चों, पहले तुम ये दो क्वेश्चन और आंसर्स राइट। अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। नन्हे बालक किसके समान है? नन्हे बालक रजकन के समान है। दूसरा, नन्हे बालक किसके दुलारे है? नन्हे बालक पृथ्वी माँ के दुलारे है। Now third question. नन्हे बालक की दुनिया कैसी है? दुनिया का अर्थ क्या है? वर्ल्ड। हाउ द लिटिल चिल्ड्रन वर्ल्ड, दुनिया कैसी है? नन्हे बालक की दुनिया कैसी है? सॉरी, हाउ द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड, नन्हे बालक की दुनिया नन्हे बालक की दुनिया अजीब गरीब निराली। अजीब गरीब निराली है। Once again I tell you, नन्हे बालक की दुनिया कैसी है? नन्हे बालक की दुनिया कैसी के बदले उसका आंसर क्या है? अजीब गरीब निराली है। The fourth one, हमारा तन किससे? किससे ढका हुआ है? ढका का अर्थ कवर। हमारा तन किसके किससे ढका हुआ है? हमारा तन हमारा तन धूप चांदनी धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ है। Right? Wait, once again. ढका हुआ है।
Listen. हमारा तन किससे ढका हुआ है? By which our body covered with? हमारा तन धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ है. Our body covered with sun and moonlight. The fifth one. Fifth question answer. सारे बच्चे किसकी गोदी में बड़े हुए हैं? सॉरी, बड़े हुए हैं. सारे बच्चे किसकी गोदी में बड़े हुए हैं? On whose lap the children will grow? Whose lap? The lap of our motherland. उसका उत्तर क्या है? तो किसकी? उसके बदले तुम क्या लिखे? तो सारे बच्चे किसकी के बदले दरा की गोदी में. दरा का अर्थ भी क्या? वो भी पृथ्वी, अर्थ. दरा की गोदी, गोदी का अर्थ लैप. द लैप ऑफ आवर मदरलैंड. गोदी में बड़े हुए हैं. Listen. सारे बच्चे किसकी गोदी में बड़े हुए हैं? सारे बच्चे दरा की गोदी में. What is the meaning? The lap of our motherland. दरा की गोदी में बड़े हुए हैं. बच्चों, मेरी आशा है तुम सब तुम्हारा क्लास नोट पर ये लिख चुके हैं और तुम्हारा किताब पर कुछ अभ्यास है वो भी तुम देखो. तुम्हारा किताब में पेज नंबर 11 में सही या गलत है उनका आंसर भी मैं यहाँ बोल रही हूँ. नन्हे रचने की पेज नंबर ले लो माँ. द रोमन लेटर्स फर्स्ट लिखित राइटिंग रीडिंग स्किल. दिए गए वाक्यों में या सही या गलत का निशान लगाइए. द फर्स्ट वन, नन्हे रचकन से ही विशाल पर्वत बन जाता है. ये सही या गलत है? सही, क्योंकि a piece of soil become a huge mountain. ये वाक्य सही या गलत है? सही. अलग अलग दरा की गोदी में बच्चे बड़े हुए हैं. The children will grow in different lap of our motherland. It is correct or wrong? अलग अलग दरा और एक ही दरा, पृथ्वी एक है, इसलिए वो वाक्य गलत. The third one, सभी दिशाएं एक संग है. All the directions are same. ये सही या गलत है? सही. The last one, हम सब एक विश्व के तारे हैं. We are the world of star. वो भी सही है. Again I tell you, नन्हे रचकन से ही विशाल पर्वत बन जाते हैं. वो वाक्य सही रूप है. The second one, अलग अलग दरा की गोदी में हम बड़े हुए हैं. वो गलत रूप है क्योंकि वो अलग अलग रूप नहीं, एक ही दायरे के रूप में है. The third one, सभी दिशाएं एक संग है. उसका अर्थ सही है. All the directions are equal. हम सब एक विश्व के तारे हैं. We are the world of star. वो वाक्य भी सही है. और the second one, कविता की पंक्तियों की पूरी
एक हमारी आसमान छत, उसका अर्थ आसमान छत। तुम्हारा किताब में पेज नंबर 11 रोमन लेटर 2 कविता की पंक्तियों। कविता की पंक्तियों पूरा करो। That means complete the poem. First one, ये हमारी डैश, एक हमारी क्या है? आसमान छत। आसमान छत, the roof of sky. One is our sky roof. The second one, डैश पवन है। तुम्हारा किताब में पोयम है, उसमें देखो कहाँ है? एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन। एक हमारी सांस पवन है। The third one, धूप चांदनी। धूप चांदनी डैश। पोएम में देखो धूप चांदनी कहाँ है? यहाँ। धूप चांदनी के कपड़ों से। The last line, धूप चांदनी कपड़ों से क्या हुआ है? हमारा तन ढका हुआ है। तन है। धूप चांदनी कपड़ों से ढका हुआ, ढका हुआ हमारा तन, हम सबका तन, सबका तन है। I hope you complete this class of complete your book. The next Roman question answers already we have to see here. The next page, पार्यावाची शब्द देखो, रोमन लेटर 1 आसमान नंबर। एक शब्द के दो पार्यावाची शब्द यहाँ है। यहाँ दिए गए 3 शब्द है, उसमें क्या क्या सही शब्द है? आसमान को, आसमान नप है, पवन व्योम, 2 शब्द सही है। नप व्योम, आसमान का अर्थ 2 अर्थ है, 2 समान अर्थ है। वो क्या क्या है? तो नप व्योम। The second one, सूरज, सूरज को भी 2 समान अर्थ है, सूर्य और रवि। चांद, चांद को भी 2 अर्थ है, शशि और चंद्रमा। The next one, धरती, धरती का अर्थ भू। हम यहाँ देखेंगे धरा और पृथ्वी, वो दूसरा अर्थ है भू। भू का अर्थ भी पृथ्वी है, अर्थ। The second one, धरा। The next one, दुनिया, दुनिया को भी 2 अर्थ है, जग, विश्व। अच्छा बच्चों, ऐसा तुम लिखने के बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क है। Children, you collect the different kinds of natural pictures or you draw in your classwork note. You collect the different kinds of natural pictures and paste in the classwork. It is not available. You draw the different kinds of natural scenery.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.